hear your preparation strategy and insights into the subject legal aptitude. Thank you, Shweta, for the introduction. It was the year 2013. I gave my exam of common law admission test. At that point of time, the pattern was completely different than what was introduced by the CLAT consortium on 1st of January 2020. The pattern in which I gave the paper was primarily aimed at more of a learning, was more of inclined towards checking the learning aptitude of a child. The paper was basically dealing with the knowledge aspect. When I say it was not a more inclined towards reading aspect of a candidate, but now the pattern which has been changed is inclined towards towards looking at the ability of the kid, how well they can comprehend the passage or how well they can comprehend an article. Stating that, I gave this paper and I was fortunate to go into National Law University Punjab. 5 years after completing the law with majors in political science and specialization in criminal law, I started teaching, and it's now like close to 2 years. I have mentored kids in and around northern India. I can say in Delhi, Allahabad, Kanpur, Lucknow, Varanasi, Ranchi, Patna. And I find one thing common among all law aspirants, and that is the zeal to crack this particular paper. It is very common among all of them, especially when I look into the cities like Ranchi, when I look into the city like Patna or Varanasi. The category of the students are inclined to do better in their life. They are more of like, "Aur kya kare?" That is what drives a faculty to work more towards that particular aim, to give them more content, to give them those topics which can be important for law entrance examination. To say the least, the CLAT consortium, when I talk about legal aptitude, the CLAT consortium came up with 3 sample papers till now. The first was released on 1st of January. The second was released on 22nd March. The third was released on 17th April. One thing which was common in legal aptitude section per se, and which every other faculty in the country has been saying, or is trying to say rather, is that there are certain important topics which a student must cover while he or she is preparing for a common law admission test. And also it is very much necessary that when a student is preparing the legal reasoning section of CLAT, he or she gives some amount of time also to the legal aptitude section of other law entrance examinations, such as AILET and SLAT or BLAT for that matter. Now, the questions which I have been asked by the kids after this pattern change, because what happened is the pattern was for a while was not certain as what will come in the law entrance examination. So students have always asked the first and foremost questions which every kid nowadays is asking, sir, ab kya paper और shift होगा, ठीक है? अब क्या paper और shift होगा? So that is the way, and I remember that some famous poet said that वक्त रहता नहीं कहीं टिककर इसकी आदत भी आदमी सी है. So that way one can look into that. Actually, the things will change. Today I was reading an article from the convener of consortium, and he had to say that we cannot go into the online format. So that being said, then students again called me, sir, ऐसा क्या हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है? So ये जो चीज है ना, this is keeping the students in doubt कि sir preparation कब तक करें, कब मान ले पेपर है. So what as a faculty I can say is, see, the CLAT consortium, the recent notice says that the CLAT consortium will declare the date as in what the condition is on 1st of July. And it clearly states कि वो अपन को एक 30 दिन का समय देगा before it tells कि भाई आपका पेपर होने वाला है, ठीक है? So taking that into consideration, we know that the paper can either be on 26th of July, ठीक है, or it will be in August, as AILET said that, and NLU Delhi said कि वो अगस्त में पेपर लेगा. So यहाँ पे अपन को ये मान के चलना है कि आज से भी अपन के पास 2 महीने हैं, ठीक है? So anybody who has not filled the form, या जो लोग फॉर्म भर चुके हैं, या जो रिपीटर्स हैं, जिनको अब ये नहीं समझ में आ रहा सर आप क्या पढ़ें, 3 सैंपल पेपर 3 बार लगा चुके हैं. So this session, I believe I will be answering to those queries which I have got over this period of like 1 month. The students have been texting me from and around different coaching institute as well. That sir, ab kya kare? So that being said,
द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज, पहला जो सवाल जो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2020, पहली चीज, पेपर के लिए अभी भी 2 महीने हैं, ठीक है, तो अपन को इसमें थोड़ा सा रिलैक्स भी रहना है और कॉम्पिटिटिव भी होना है, दोनों चीजें बैलेंस करके रखनी है। अपन को ये भी ध्यान रखना है कि अपन क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में साथ अपन लोग एआई लेट स्लैट और ब्लैट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो अपन लोग को वो वाला पोर्शन भी लीगल का अपने साथ रखना है, जिसको हम लोग पहले जानते थे, इसको लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो आते थे। प्रिंसिपल होता था, मतलब एक रूल गिवन होता था लॉ का, उसको अपन फैक्ट्स में लगाते थे और फिर एक आंसर पे आते थे, 4 ऑप्शन होते थे, उनमें से बेस्ट पॉसिबल आंसर को अपन सेलेक्ट करते थे। ये फॉर्मेट अभी भी है व्हेन वी टॉक अबाउट एआईलेट एंड स्लैट। क्लैट के लिए हाँ थोड़ा सा चेंजेस आए, बट इतने भी रैपिड चेंजेस नहीं माने जाएंगे, बिकॉज टॉपिक्स जो हैं लीगल के वो लिमिटेड हैं। तो टॉपिक्स, अब अगर मैं इस पे बात करूं, पहली दूसरी चीज कि सर ये तो ठीक है, आप टॉपिक बता दीजिएगा, पहले बताइए कौन से सोर्सेस हैं जहां से हम पढ़ सकते हैं, बिकॉज ये एक मेजर क्वेश्चन आ रहा है कि सर पुराना वाला पैटर्न था तो अपने पास पास्ट ईयर पेपर्स थे, सब लोग, आप भी पहले बोलते थे पास्ट ईयर पेपर्स लगाया करो, सो और बाकी सीनियर्स भी बोलते हैं पास्ट ईयर पेपर्स लगा लो, एनलेस के पेपर्स लगा लो, और जितने भी पेपर्स हैं लगा लो, पेपर निकल जाएगा, ठीक है, 110 नंबर तो आ ही जाएंगे, पुराने वाले पैटर्न। अब क्या हुआ, जब ये पैटर्न चेंज हुआ तो along with me and other people who are involved in teaching legal aptitude in the country, I hope everybody is seeing the same कि जो सैंपल पेपर्स आए हैं, 3 सैंपल पेपर्स आए हैं, उन्हें बार बार लगाने की कोशिश करो। इसके अलावा आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट लीगल टॉपिक्स पर से, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट लीगल टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, ये भी एक सवाल आता है, तो ये हम अपन कहां से समझेंगे, ये भी जो क्लैट कंसोर्शियम के पास सोर्सेस हैं वही अपने पास भी सोर्सेस हैं, ये मान के चलना है अपन को, ठीक है। उनके पास भी वही सोर्सेस, वही वेबसाइट्स, आई एम टेलिंग यू दोस वेबसाइट्स, ठीक है, बार एंड बेंच, लाइव लॉ, 2 वेबसाइट्स, ठीक है, मोर देन इनफ। ये आपके लीगल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिछले साल एआईलेट का जैसा पेपर आया था लीगल एप्टीट्यूड में, लीगल नॉलेज के काफी क्वेश्चंस पड़े हुए थे, तो अपन के लिए ये दोनों वेबसाइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइव लॉ, बार एंड बेंच। आई विल रिपीट इट अगेन, ये, and I'm not promoting them, I'm just telling them that this is important. Second, हुआ क्या कि अब ये जो एडिटोरियल्स हैं, जो न्यूज़पेपर्स, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, आई विल नॉट गो इनटू द डिबेट कि सर इनमें से कौन सा बेटर है, ठीक है, बिकॉज आई विल लीव इट टू द पीपल who have read more than me to decide on that. But as a person who can guide you through this particular process, I will say go through the editorial of both these newspapers, ठीक है। अपन का ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऐसे 1.5 घंटे से 2 घंटे लगेगा। और एक और अच्छी चीज होगी, जब अपन इसे रेगुलरली पढ़ेंगे तो टॉपिक्स क्या होंगे, रिपीटेटिव होने चालू हो जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि ये पेपर कैसे रिपीटेटिव टॉपिक्स कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है। ट्राई टू सर्च द टॉपिक क्राइम एंड पनिशमेंट, आई रेड दैट पर्टिकुलर टॉपिक थ्राइस विद इन 2 months टाइम फ्रेम। सो आप देख सकते हैं कि वो टॉपिक बढ़ रहा है। आजकल के अगर न्यूज़पेपर्स को जब मैं पेरूजिंग करता हूं, सो आई फिगर इट आउट, आइदर द न्यूज इज टॉकिंग अबाउट कोरोना वायरस, जो कि अपने लिए लीगल की अगर बात की जाए तो उसमें से कुछ एंगल्स में इंपॉर्टेंट है। वन इज माइग्रेंट डिसीज का जो एक्ट है उससे रिलेटेड जो ऑर्डिनेंस आया, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है जिसके अंदर दी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कोविड-19 को, जिसे WHO ने पेंडेमिक बोला, अपने यहाँ नोटिफाइड डिजास्टर डिक्लेयर किया, ठीक है। दीज 2 लीगल एंगल्स, ठीक है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं व्हेन इट कम्स डाउन टू द कोविड-19 सिचुएशन, ठीक। अब यहां से दूसरा मैं पेपर में एक टॉपिक पढ़ रहा हूं विच इज अगेन एवरीडे डीलिंग विद माइग्रेंट लेबर इशू, ठीक है। माइग्रेंट लेबर इशू, एवरी डे अ न्यू आर्टिकल इज देयर इन द न्यूज़पेपर। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, लोगों ने ये बोला, दिस गवर्नमेंट इज डूइंग दैट, दैट गवर्नमेंट इज डूइंग दैट, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये लेबर लॉस बदल दिए, ठीक है। अब ओवरऑल इसका अपन को बस ऊपर से एक पूरा का पूरा पिक्चर लेना है, ठीक है। क्या माइग्रेंट इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं? हाँ है। अब इसमें जो लॉज इन्वॉल्व हैं, क्या इसमें हमको, फिर एक बच्चे ने एक दिन मुझे टेक्स्ट किया, बोला सर ILO का रेजोल्यूशन पढ़ लें क्या? सो इतनी भी लिमिट पे नहीं जाना है, ठीक है। अपन को जो नेशनल डेली न्यूज़पेपर में जो टॉपिक्स आ रहे हैं जिससे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है पैसेज, वो पढ़ना है। दूसरी चीज, rather दूसरी, I say when दूसरी, then doing the next thing. So what happens is in a passage there is a difference to identify कौन सा passage important होगा. As a faculty, I can share it with you that when I read a passage, first and foremost I try to identify क्या इस passage से, या जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, इससे क्या 5 क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। अगर 5 क्वेश्चंस बन सकते हैं तो मैं उसे एक बार और पढ़ूंगा या मैं उसे इंपॉर्टेंट मानूंगा। सेकेंड चीज, क्या ऐसा कोई लीगल का टॉपिक है जो बार बार रिपीट कर रहा है? At this very foresight, I would like to tell you
there's one and foremost important topic for this year's CLAT, and that is right to privacy. Now you will ask me, sir, why right to privacy? Those who of you have just started the preparation. So right to privacy इसलिए सबसे पहले इंडिया का डेटा प्रोटेक्शन बिल, ठीक है, उसके बाद कैलिफोर्निया का कंज्यूमर लॉ, ठीक है, आया था न्यूज़पेपर में, ठीक है, इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप से रिलेटेड जितना भी अभी डिस्प्यूट चला, ठीक है, और इसके अलावा ये जो राइट टू प्राइवेसी है, जब से केस पुट्टास्वामी वाला जजमेंट आया है जिसमें राइट टू प्राइवेसी डिक्लेयर्ड एज द फंडामेंटल राइट, तब से ये टॉपिक इंपॉर्टेंस रखने लगा है हमारे लॉ एग्जामिनेशन के लिए। वैसे भी ये केस वैसे भी इंपॉर्टेंट था, अब हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि इससे रिलेटेड पैसेजेस मिलते रहते हैं। मैं अभी जस्ट क्लास ले रहा था 3 दिन पहले, एंड आई वाज डीलिंग विद द किड्स विद रिस्पेक्ट टू आरोग्य सेतु app, and then there is this clause of mandatory. Then I was telling them about under which provision have they declared it. Empowered group ने से इसके प्रोटोकॉल डिक्लेयर किया। ये मैं थोड़ा सा आपको ऊपर से एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और जहां तक इंडिया का डेटा प्रोटेक्शन बिल है, ये न्यूज पे बना ही रहता है। Someday or the other, somebody is doing a webinar in our country right now. All those legal luminaries, I must say, are doing a pretty good job when they are trying to take you through this particular topic of right to privacy. One and foremost, very important. So this topic is very important, I told you. Then the COVID-19 topic, sample paper 3 is a testimony to that. COVID-19 से related Epidemic Disease Act, उसका जो Ordinance Disaster Management Act, this is important for CLAT 2019. ठीक, अच्छा, अगर और बात की जाए कि सर और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक तो मैं ये हमेशा से बोलता हूँ कि एक टॉपिक अपन को रखना है इस साल, वुमेन एंड लॉ से रिलेटेड वाला। वुमेन एंड लॉ, अपन को ये टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है। अब वुमेन एंड लॉ क्यों सर, इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं और ये आपको क्यों लग रहा है इंपॉर्टेंट है? सो इसका आंसर ये, सबरीमाला टेम्पल वाला इशू एक था, ठीक है, वी रिमेंबर दैट। देन द एंट्री ऑफ वुमेन इनटू द आर्मी, ये एक सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। सरोगेसी बिल न्यूज पे था, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक जो मैं प्राइमा फेसी इंपॉर्टेंट समझ रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस इंक्रीज होना ड्यूरिंग द लॉकडाउन, ये एक अलग चीज चल रही है, ठीक है। एंड अदर देन etc. Women related topics will always be in news. And there was another topic that how is crime related to women entwined with or associated with the political scenario in our country, the crime and politics ka relation. So this topic of women is always in news. You pick up a paper, you will find a topic which somehow relates to an issue of women. Right now, these days we are looking into that अभी सुबह की बात है, एसेंशियल सर्विसेज के अंदर इन लोगों ने डाल दिया दी प्रेगनेंसी वाला सिस्टम पूरा का पूरा। सो दैट वे दिस टॉपिक बिकम्स इंपॉर्टेंट, वुमेन इन लॉ। सो आई कंसिडर इट इंपॉर्टेंट, आई कंसिडर राइट टू प्राइवेसी एज इंपॉर्टेंट, आई कंसिडर COVID-19 एंड कोरिलेटेड इश्यूज एज इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर्स CLAT. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर इश्यूज टू। होता क्या है, जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो वी हैव टू लुक इनटू ऑल द पॉसिबल सेक्शन विदिन द लॉ, विदिन द लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन। लाइक कॉन्स्टिट्यूशन से जब हमने देखा तो ये टॉपिक आ गया, इस टाइप से करके। तो अपन को जो बेसिक्स हैं वो तो प्रिपेयर करने ही रहने हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स जो हैं वो पॉलिटी में भी आते हैं, वो जीके का भी टॉपिक होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो टॉट है उसके भी बेसिक्स अपन को आने चाहिए, थोड़े बेसिक्स क्रिमिनल लॉ के भी आने चाहिए। बिकॉज अगर पैसेज लिखा है, पैसेज में कहीं टर्म्स लिखा हुआ है मेंस रिया या एक्टस रिया, so my dear friends, it is the consortium believes that these are the terms which any of us, the general public, will understand. CLAT consortium को इससे really ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पहले भी उसके सिलेबस में यही आता था कि पेपर will comprise of all those topics जो हमारी कॉमन दुनिया के हिस्से से हम लोगों को पता चलते रहते हैं, बट ऐसा होता कभी नहीं था। There were few topics which were out of the blue, ठीक है। CLAT consortium बिलीव करता, जो CLAT कमेटी थी पहले और जो CLAT consortium बिलीव करता है कि हम लोगों को कुछ चीजें तो पता है ही, ठीक है, तो अपन को वो चीजें पता रखनी पड़ेगी, ठीक है, दैट वे। अच्छा, एक टॉपिक और है इंटरनेशनल लॉ का जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जो कि इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूंगा आप इससे रिलेटेड भी पैसेजेस पढ़ें। इंटरनेशनल लॉ में देयर 2 or 3 topics which are important. I consider them important. Your faculty, your members can consider other topics as important too, and you can read that too. This is a caveat from my side. Okay, so the first and foremost issue in international law which I consider important is Kulbhushan Jadhav matter. ठीक है, Kulbhushan Jadhav judgment from the ICJ, International Court of Justice. We already recognize when we go through the past year papers that this particular topic, ICJ, International Court of Justice, has been important for law entrance examination. They have been trying to ask us how many number of judges are there in the ICJ, where is the headquarter, what is the term of these judges, who was the first judge from India.
and who represented India in this particular matter. ठीक है, so ये type क्वेश्चन तो important बने ही रहेंगे इंटरनेशनल लॉ पे। दूसरा इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक जो इंपॉर्टेंट लगता है मुझे वो है विद रिस्पेक्ट टू रोहिंग्यास, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था म्यांमार रोहिंग्या, एंड this is entirely also related to India's relation with that particular country, and that has been also been taken up in the ICJ. So these two topics I consider very very important when it comes down to the international law. That being said, अच्छा एक और चीज आई, बच्चों ने पूछा कि सर ऐसा ऐसा भी होता है क्या कि मतलब कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बाकी टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. So पहले ये while I am starting, so what I am doing is I am trying to give you all those important topics. ठीक है, as somebody who believes that your preparation will be aided if I tell you these topics. You will know what to read and what to, rather what not to avoid, what to read more, on what topics you need to read. So when I say so, in the constitutional law, there is one particular article, Article 14, right to equality. That is important. When I say right to equality, understand, my dear friends, a particular part of that also talks about principle of natural justice. I hope few of you have heard that nemo judix in causa sua, and audio alterum partem. So these two principles, when we read Article 14, so उसके अंदर ही अपन ये पढ़ते हैं. So Article 14 per se becomes important. इससे related passage आ सकते हैं, because अगर मैं देखूं Article 14 से related जो questions भी पहले बनते रहे हैं, ठीक है, तो उनके नेचर ऐसे थे कि वो सपोज वाली सिचुएशन में डाल के अभी भी इम्बेड किए जा सकते हैं किसी भी पैसेज में. Therefore, when I say constitutional law के important topic, I say Article 14, and then Article 21. तो I have already told you when I was telling when I by somehow I told you about right to privacy being a fundamental right, that is declared under Article 21. So that becomes important. अच्छा, एक और चीज बच्चों ने पूछा कि सर आप पहले भी बोलते थे और अभी भी when anybody calls me, I tell them that to read two topics like sedition and defamation, because these topics are important. Why? Because there are two things. The topic of defamation, manhani for that matter, okay, and sedition, okay. These two topics are there in the IPC, Indian Penal Code. मतलब ये क्रिमिनल लॉ पे भी अपन पढ़ते हैं. दूसरी चीज, इसका रिलेशन अपन लोग जानते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए से भी है, ठीक. सो देयरफॉर दीस टॉपिक्स बिकम इंपॉर्टेंट, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाना भी बहुत आसान है. हमेशा से क्वेश्चंस आते भी रहे हैं. पैसेज आपको दिया जा सकता है अभी रिसेंट रिलेटेड किसी भी इशू ऑफ डिफेमेशन से, उसके नीचे सपोज की सिचुएशन, जैसे कि क्लर्क कंसोर्शियम ने पैसेजेस दिए हैं, मतलब एक पैसेज देने के बाद सपोज करके अपन से वो सवाल पूछ रहा है. सो देन दोस क्वेश्चंस जो पहले भी हम लोग कर चुके हैं वो यहाँ पे भी आ सकते हैं. इस समय आप इस टाइप के you can also talk about the strategy to solve those passages. Okay, so once we identify these important topic, I will take a minute and then I will come down to the strategy section. Triple talaq topic is also important, my dear friends. I don't want to miss it while I go into the strategy section. Triple talaq topic is also important. Same as consumer law, Consumer Protection Act 2019. So there is a new set of law, Consumer Protection Act 2019, and there has been a significant change made to this particular law. So understand that, because I was talking to few kids and who are preparing for CLAT while still being in National Law University in first year, and they told me, sir, हमें तो पुराना कानून पढ़ाया जा रहा है, ठीक है. So you don't do that mistake. आप नया वाला पढ़िए, ठीक है. अच्छा, now coming on to the strategy, that how to go ahead with these passages. So first and foremost, passages अभी जो recently sample paper release, जो sample set release किया फ्लैट कंसोर्शियम ने, ये बात करता था यूजीसी ने जो अलाउ किया है डुअल डिग्री प्रोग्राम के बारे में. आई विल टेक यू थ्रू दिस रीसेंट पैसेज रिलीज बाय क्लैट कंसोर्शियम, ठीक है. डुअल डिग्री प्रोग्राम की बात की, जब हम पूरे पैसेज से ही पढ़ रहे थे, पैसेज पढ़ते पढ़ते क्या हुआ कि हमें समझ में आने लगा कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते थे. पैसेज बहुत छोटा होना है, 450 वर्ड्स का पैसेज, जो एक लिमिट है क्वेश्चन फ्रेम होने की वो भी बहुत ही लिमिटेड होती है. तो क्वेश्चन उसी पैसेज से आएगा, उस पैसेज की कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो अपन को यूज करनी होगी while solving a factual situation. एग्जाम्पल मैं इसी से लूंगा. क्लैट कंसोर्शियम ने जो पैसेज रिलीज किया ऑन डुअल डिग्री कोर्सेज टू बी अलाउड बाय यूजीसी, उसने बोला वन कैन हैव अ डुअल डिग्री कोर्सेज, बट उसमें एक ही रेगुलर होगा, दूसरा जो होगा या तो वो डिस्टेंस प्रोग्राम से होगा या ऑनलाइन फॉर्मेट में होगा, ठीक है. अब इसी में जो क्वेश्चन बन सकता है, अगर इस लाइन से ही बनाना हो तो ऐसा बन सकता है,
Suppose Harsh is a student at National Law University, Punjab. He is doing BA honors. He cracked CLAT in the year this, full stop. Now Harsh is thinking about or pondering to do BSc because his parents are asking him to also do BSc simultaneously. क्योंकि अगर law में career नहीं बना तो BSc कर लेगा for this matter. ठीक है. Now the question can be whether the second degree program in which Harsh has enrolled is valid or not as per the UGC guidelines. ठीक है. So अपन ने जो लाइन पढ़ी थी ऊपर वो ये थी कि एक ही रेगुलर प्रोग्राम होगा, दूसरा या तो डिस्टेंस होगा या ऑनलाइन होगा. यहाँ पे जो बीएससी वाला होता है वो रेगुलर होता है. ठीक है. सो यहाँ पे ये क्या होगा, ये अलाउड नहीं होगा. हर्ष कैन ओनली परस्यू 1 डिग्री. ठीक है. ये अपन ने सिर्फ एक लाइन से निकाला जो पैसेज में गिवन थी. ठीक. दूसरी चीज, अब पैसेज की ही दूसरी लाइन को अगर मैं उठाता हूँ, ठीक है, व्हिच इज अबाउट कि हाँ आप अगर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है तो आप ये नहीं कर सकते कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम को आप जो सेकंड जो डिग्री अलाउ की है यूजीसी ने, मतलब मैं UGC said you can do 2 degree programs at once. ठीक है. This is foremost, हम अपन ये समझ गए. अब इनमें से एक डिग्री प्रोग्राम में अंडर ग्रेजुएट कर रहा हूं तो सवाल ये आता है क्या मैं दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट का कर सकता हूं? तो UGC ने बोला ऐसा नहीं कर सकते. मतलब if I am a student of BA LLB honors, I cannot do an online or a distant course of MBA कि जब मैं कॉलेज से निकलूंगा मेरे पास तो 2 डिग्री होंगी, मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट भी बन जाऊंगा. ठीक है. ऐसा नहीं कर सकते. अब इसी चीज को जो पैसेज में लिखी थी, अब इसी को क्वेश्चन बनाया जा सकता है. सेम एग्जांपल, हर्ष इज अ BLLB ऑनर्स स्टूडेंट, ही इज डूइंग लॉ, ही इज इन द 3rd year of National Law University. He decides to do a postgraduate degree program online. ठीक है, from a particular XYZ university. Is his postgraduate degree program valid as per the directions given by the UGC? तो अपन ने जो पैसेज में पढ़ा उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा नो. आंसर नो होगा. क्यों? बिकॉज अगर आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप उसके साथ साइमल्टेनियसली पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम नहीं कर सकते. आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर टू these two things. हाँ, सो इस तरीके से ही पैसेज में इंफॉर्मेशन गिवन होती है और पैसेज की ही वो इंफॉर्मेशन को अपन यूज करते हैं फैक्चुअल डेटा में और फिर वहां से हम करेक्ट ऑप्शन चूज करते हैं. पहले क्या होता था, क्लैट कंसोर्शियम आपके सामने 2 या 3 लाइन का रूल लिख देता था, पैसेज नहीं लिखता था, रूल लिख देता था, तो अपने लिए इजी हो जाता था, वही रूल अप्लाई कर देना है, फैक्ट्स में आंसर आ गया. अब क्या है कि वो जो लॉ है, वो जो रूल पॉइंट है, वो कहीं ना कहीं इंटरमिंगल है. मान लीजिए दूसरा मैं एग्जांपल देता हूं क्लैट कंसोर्शियम से अलग. मान लीजिए हमारे सामने एक पैसेज है, वो है मेडिकल नेग्लिजेंस का. एक मेडिकल नेग्लिजेंस का पैसेज है, हमारे सामने एक न्यूज स्टोरी डील की गई है, मतलब किसी भी हॉस्पिटल की situated in Chandigarh, where due to the negligence of a doctor, there has been an infection to a lady and a case has been filed against that particular doctor. अब इसी से I'm sorry, सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन है पैसेज में, तो अपन को 2-3 चीजें क्लियर हो रही हैं. पहली चीज, नेग्लिजेंस कुछ ऐसा होगा कि इसके खिलाफ केस हो सकती है. डॉक्टर ने किया मतलब ऐसा होता रहता होगा. मेडिकल नेग्लिजेंस अगर टर्म है तो क्लैट कंसोर्शियम आप देखिए यहाँ पे हमसे बिलीव करता है कि हमें पता होगा नेग्लिजेंस क्या होता है. ठीक है, नेग्लिजेंस लापरवाही क्या होती है. ठीक है, which I believe one should be prepared before that they know these terms, these legal terms. पैसेज में तो ऐसा लिखा हुआ था, लेकिन क्लैट कंसोर्शियम हमसे बिलीव क्या कर रहा है कि हमें नेग्लिजेंस पता होनी चाहिए. ठीक है, दैट इज ड्यूटी ऑफ केयर, ब्रीच ऑफ ड्यूटी रिजल्टिंग इनटू डैमेजेस. अब ऊपर जो उसने सिचुएशन दी, अब उसी में से अपन के लिए एक सपोज वाली सिचुएशन दे देगा. In the sense, मान लीजिए there is one famous doctor by the name of Dr. Kabir Singh. ठीक है, so फिर लिखा होगा while he was operating upon Preeti, ठीक है, he left scissor while operating, मतलब while he was doing the surgery उसने scissor उसकी बॉडी पे छोड़ दी. ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रीति सफर्ड फ्रॉम इंफेक्शन. प्रीति को क्या हो गया, इंफेक्शन हो गया. सो इस इंफॉर्मेशन यहां तक पहुंचने के बाद इफ समबडी नोज दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या उसने पैसेज पढ़ा है तो यार एक चीज अपन को पता है, मेडिकल नेग्लिजेंस का केस हो सकता है. पर क्या इस इंफॉर्मेशन को, इस सेट ऑफ फैक्ट्स को सुनने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे डॉक्टर की लापरवाही थी? आपको क्या लगता है, पता क्या जो डॉक्टर कबीर सिंह जब ऑपरेट कर रहे थे, सर्जरी कर रहे थे, क्या उन्होंने यहाँ पे लापरवाही की कि उन्होंने प्रीति व्हाइल ही वाज ऑपरेटिंग ऑन प्रीति उन्हें कोई इंस्ट्रूमेंट उसके बॉडी के अंदर छोड़ दिया? क्या ये यहाँ पर उनकी लापरवाही है? श्रोता, व्हाट डू यू बिलीव, क्या कोई लापरवाही है यहाँ ऑन द पार्ट ऑफ डॉक्टर कबीर सिंह? है तो सी. Yes.
So that is how, even like a person like even a person who has not read this particular topic will be able to ascertain this particular thing कि हाँ लापरवाही है. And क्यों है? Because यहाँ पे ड्यूटी ऑफ केयर थी. एक डॉक्टर की जो ड्यूटी ऑफ केयर होती है टुवर्ड्स इट्स पेशेंट, वो उसने ब्रीच की है, ठीक है, जिसकी वजह से डैमेज हुआ है. सो लापरवाही के पूरे एसेंशियल्स मेट आउट हो रहे हैं, ठीक है, पहली चीज. तो इस टाइप के सवाल बनाए जा सकते हैं पैसेज से. अब नेग्लिजेंस गिवन था तो नेग्लिजेंस मान सकते हैं कि पैसेज में अगर उसे डिफाइन कर दिया. मान लीजिए एक और दूसरी सिचुएशन है कि उसने किसी भी एकेडमिक बुक से भी टॉपिक्स आने लगे हैं. क्लैट कंसोर्टियम ने जो पैसेजेस दिए हैं उसमें कुछ पैसेजेस ऐसे हैं जो बिल्कुल हूबहू उसने उठा लिए हैं किसी भी एकेडमिक बुक से, ठीक है. मान लो पूरा डिफाइन कर रहा है नेग्लिजेंस ये होता है, नेग्लिजेंस इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर रिजल्टिंग इनटू डैमेजेस, एक लाइन लिख दी और ऐसे केसेस हम लोग से पूछ के उसके बाद सपोज के क्वेश्चन लेके चले आए, ठीक है, कि एक एग्जांपल लेते हैं फिर से जैसे वो क्लैट कंसोर्टियम अपन से सवाल करता रहता है. अपन को अब एक चीज पता चल रही है, नेग्लिजेंस क्या होता है, ठीक है, ड्यूटी ऑफ केयर होती है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी होती है, रिजल्टिंग हो जाता है डैमेजेस, ठीक. अब इसका हिंदी में समझ लेते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है लापरवाही. तो अपन को बस दिमाग में डिटरमाइन करना है लापरवाही हुई या नहीं और किसी का नुकसान हुआ कि नहीं. अब हमारे अपार्टमेंट में सबसे छोटा सा एग्जांपल, हमारे अपार्टमेंट में एक चौकीदार है, इसकी ड्यूटी है रात को जगकर इस पूरे बिल्डिंग की रखवाली करना. और वो रात को अपनी ड्यूटी करते करते सो गया और रात को यहाँ पे चोरी हो गई, ठीक है. सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन अपन को गिवन है. अब व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ पे क्या गार्ड की लापरवाही थी? He was negligent. Yes. So that is how the questions are developed and that is how you determine. जब आप फैक्ट पढ़ रहे होते बच्चा लोग, आफ्टर यू प्रैक्टिस, जब आप फैक्ट्स पढ़ते रहते हो तो आपको पता चल जाता है. फैक्ट्स की 2-3 लाइन होती है, आपको पता होता है ये आंसर क्या होगा. एटलीस्ट 2 थिंग्स आर देयर कि अपन को पता होता है आंसर यस होगा या नो होगा. उसके बाद सही रीजन सेलेक्ट करना होता है. सही रीजन सेलेक्ट करने में आपका कौन हेल्प करेगा? पैसेज की कुछ ना कुछ लाइंस हो सकता है हूबहू आपके ऑप्शंस में लिखी हो. And this is a trick of trade. Myself as well as the other people who have been teaching law have told the kids कि बेटा वो वाला ऑप्शन लेना जो थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो रूल से, आपके जमाने में पैसेज से, ठीक है. So this is how you strategize your preparation. First and foremost, you read those important topics which I told you. फिर उससे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं अपन और फिर बस हो गया. This is how the strategy is done. Yes, Shweta. Can I ask my question now? Did you say? Yeah. Okay, so we've been meaning a lot of people want to ask what is the change in legal aptitude section in CLAT 2? So you've mentioned already, but if you had to really put your finger on the change that has happened. Okay. So in legal aptitude section, which I called it this a lot of people like me have called it CLAT 2.0. So इसके पहले 1 जनवरी के पहले अपनी प्रिपरेशन बहुत ही सिंपल थी. बुक्स उठाते थे हम, पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करते थे. एक रूल था, एक नॉर्मल पढ़ाई करते जा रहे हैं, ठीक है. अपन को बुक्स मिल गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पढ़ लिए, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पढ़ लिए. सर ने बता दिया ये 300 क्वेश्चंस हैं, 300 क्वेश्चंस पढ़ लिए. सर ने भी बोला इन्हीं में से सवाल आएगा, ठीक है, एज इट यूज्ड टू बी, ठीक है. सर ने बोला कि हमेशा से यही होगा और यही होता भी था, ठीक है. प्रिंसिपल था, जो एग्जाम्पल मैंने दिया फैक्ट्स को लगा के ऑप्शंस पे आ जाते थे. अब क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज आ गया. अब रूल सिंपली गिवन नहीं है, उसकी जगह एक पैसेज गिवन है, ठीक है. और उस पैसेज में कहीं ना कहीं वो लॉ पॉइंट गिवन है जो अपन को फैक्ट्स पे लगाना है. एक तरीके से हमारे लिए थोड़ा सा आसानी हुई है. कुछ बच्चों ने मेरे से बोला सर पेपर बहुत लेंदी हो गया, डिफिकल्ट हो गया है. मेरा कहना यही रहेगा आपसे कि अगर क्लैट कंसोर्टियम वो 5 क्वेश्चंस को जो एक पैसेज के नीचे लिख रहा है, अगर इसी पैसेज को वो जो 450 वर्ड्स हैं इसी को ये डिवाइड कर देता, 150 वर्ड्स का एक रूल बना देता, 150 वर्ड्स का फिर एक रूल बना देता, 150 का फिर रूल बना देता, इस तरह कर देता. समझ रहे हैं आप? तो पेपर और थोड़ा सा शॉर्ट हुआ है माय डियर फ्रेंड्स. अगर आप लेंथ वाइज देखें, रूल जो था जो अलग अलग रिटर्न थे अब वो एक साथ पैसेज में आ गए. सो इस तरीके से पेपर अपने लिए इजी हुआ है. अगर एक पैसेज अपन को क्लियर हो गया तो कम से कम अपन 5 क्वेश्चंस निकाल सकते हैं. सो मैं बोलूंगा आपका पेपर जो है, आपका जो लीगल सेक्शन है वो इजी हुआ है डिफिकल्ट होने की बजाय. Okay. Yes, How is it different from other law entrance exams? CLAT का जो legal aptitude है versus others? Okay. So this is again a lot of times asked question from me and other people around who deal with this particular thing. ऐसा हुआ क्यों? Because सिम्बायोसिस का पेपर होने वाला था अभी रिसेंटली, जो अभी रीशेड्यूल हुआ है.
सो बच्चा लोग ये पूछ रहे थे कि सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखो क्लैट का क्या है कि मैंने तुम्हें टॉपिक बता दिए कि मतलब हर्ष ने बोला कि टॉपिक है, सर बोल रहे थे ट्रिपल तलाक पढ़ लेना, सरोगेसी पढ़ लेना, ये पढ़ लेना। अब पैसेज पूरे के पूरे पढ़ने पड़ेंगे क्लैट के लिए, उनकी मतलब उनसे हम लोगों को अवेयर होने के लिए कि उसमें क्या चल रहा है। वेयर अगर हम बात करें एआई लेट की, जो कि एनएलयू दिल्ली के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, स्लैट सिम्बाइसिस के लिए या ब्लैक, अब इन तीनों के लिए वही चीज है, जो प्रीवियस पैटर्न था इन पेपर्स का वो रहेगा। सो व्हाट एज आई एम मेंटो विल सजेस्ट यू इज दैट कि अपन लोग इन सारे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है इनके पास्ट ईयर पेपर्स लगाते रहें। दैट इज द ट्रिक ऑफ ट्रेड। ठीक है, पास्ट ईयर पेपर्स पे फोकस करें, करंट लीगल नॉलेज पे फोकस करें। करंट लीगल नॉलेज इन द सेंस कि वन शुड नो हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सबसे इजी है जो मैं आपसे बोल रहा हूँ इस समय। एंड स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल will not be able to figure out कि सर कौन है। मेरे हिसाब से दीपक मिश्रा होगा, ठीक है, फॉर दैट मैटर। यस, सो इससे अपन को ये क्या कहते हैं, अपन को रखना है ये छोटी छोटी चीजें, अटॉर्नी जनरल कौन है, ये कौन है, आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ है, और जो करंट हैपनिंग इन एंड अराउंड हो रही है कि केस का लॉ, कोई इंपॉर्टेंट केस था तो उसका केस का नाम क्या था, सबरीमाला टेम्पल जो इशू हुआ उसमें केस का नाम क्या था। सो ये टाइप की चीजें जो हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं व्हेन इट कम्स डाउन टू अदर लॉ एंड एग्जामिनेशन। ऑर्डिनेंस आया तो ऑर्डिनेंस कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, प्रेसिडेंशियल पावर टू इशू ऑर्डिनेंस, गवर्नर्स पावर टू इशू ऑर्डिनेंस। सो मोर ऑफ अ ले, अगर मैं आपको एक ट्रिक ऑफ ट्रेड बताऊं बाकी सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, वो ये होगी कि लीगल की अगर नॉलेज की बात है सो इट इज इक्विवेलेंट टू पॉलिटी। ठीक है, सो अपन लोग कुछ भी नहीं, अपन लोग कोई आपसे बताएगा नहीं, बट आई एम टेलिंग यू इट्स वेरी सिंपल। अरिहंत की 30 रुपए की किताब आती है जीके वाली, उसमें एक पोर्शन होता है पॉलिटी का, एज सिंपल एज दैट। वो अपन 2-3 बार पढ़ लेते हैं और पास के पेपर पढ़ लेते हैं। आई एम हैप्पी, एटलीस्ट द पेपर ऑफ ब्लैक आप आराम से निकाल सकते हो, और सिम्बाइसिस का भी निकाल सकते हो। So that way, these interest examination are different, and I believe if you are well prepared, if you know, if you have that particular kind of uh, practice, then these exams are very very easy. Uh, when I tell you this, Shweta, this is the reality. Uh, rather you would have not heard about a crash course when you talk about IIT entrance, JEE की preparation या नीट की preparation. आपने कभी नहीं सुना होगा क्रैश कोर्स होता है, ठीक है। मेरे कजन भी कर रहे थे तैयारी, तो मैंने पूछा क्रैश कोर्स होता है, बोले नहीं होता। बट इसका होता है, क्लैट का क्रैश कोर्स होता है, लॉ एंड एग्जामिनेशन का क्रैश कोर्स होता है, एंड एवरीबडी सेज यू 30 दिन में पेपर निकल जाएगा, फॉर दैट मैटर। सो हाँ, ये रियलिटी है, और अब तो अपने पास 60 डेज है, ठीक है। पहले 30 दिन थे, अब तो 60 दिन है, डबल। सो अपन लोग अपने स्कोर अगर ये मान के भी चलें कि यहां से पूरा पेपर तक 60 दिन है, अपन को हर दिन सिर्फ 2 नंबर गेन करने। अपन का एम होना चाहिए दिन में उठे 2 नंबर कैसे आ रहे हैं, वो अपन को बस समझना है। बस वी आर गुड टू गो। वी विल 120 is like a superb score in this year's flat, which is of 150, going to be of 150 numbers. That is it. Sure. Any other sources apart from Arihant? Any other books that you would recommend personally? Okay. So when it comes down to the CLAT, I have already told you what to refer to online sources, and also to 3 sample papers released. When it comes down to the law and examination, I have told you for legal knowledge. For legal knowledge, I have told you to read this polity wale topic, ठीक है। And apart from that, it's very easy, बच्चा लोग, आप गूगल भी करोगे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बस सिंपल आ जाएगा। सिंपल, बिल्कुल वेरी सिंपल है, ठीक है। और जो अपने पास स्टडी मटेरियल है उसमें भी से जो वैसे टॉपिक है जिसके 1 वर्ड आंसर्स हैं वो अपन को पढ़ने हैं, जैसे लीगल मैक्सिम्स अभी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि बेटा व्हाट डू यू मीन, somebody is asking how was your year and you say annus mirabilis, फॉरेन टर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैलाफाइड, these terms. So ये कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हो जाते हैं। others are available, they are available freely on the internet. One can take out any of those lists and go through it, ठीक है। So all that I had to ask, there are a lot of things you've already covered, like things like kya change hua hai, koi sources, and then about important topics you've really covered in your in the beginning. But if we wanted to ask what could be the important topics, it's at length we've discussed.
And also, what is the good score according to you for 2020 that you think will be a great score this time? Okay. Considering how much So time to prepare this. yeah. So I must tell you, and I must tell the kids about this particular thing. बेटा पेपर 150 नंबर्स का हुआ है. ये चेंजेस जो है ये उन लोगों के लिए ब्लिसफुल रहेगा, दोज हु हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग. दिस इज इंपॉर्टेंट. Still we have 60 days to go, so any one of you who is thinking कि सर इस बार मुश्किल लग रहा है, so I would just like to say कि ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, कहीं से भी ये मुश्किल नहीं है. ठीक है, if you decide कि हाँ नहीं, हाँ ये करना जरूरी है, तो हो जाएगा. देन अगेन आई विल से अ फेमस कपलेट, सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में निकल सको तो चलो. So everybody is in that same journey. The safe score I can say will be, it's my personal guess, I'm not making it on any institutional basis. I will say that 100 plus 5 minus 5 plus 5 minus 5 will be a safe score to land you in National Law University this year. And 120 ka score will be a really good score to get you into the top 3 National Law University. So I believe when you ask my opinion, my opinion will be 100 plus 5 minus 5. May I also request people who are listening can also ask any questions now. This is the second half of our webinar where we address questions. If you have any, please feel free to type them in the chat. Anything else, Harsh, that you feel that people tend to people panic about, or you want to address anything else, particularly for this subject or generally for CLAT? Yeah. So first and foremost, there एक और चीज है, मतलब पेरेंट्स कॉल मी एंड सेड कि सर बच्चे अपना सही स्कोर नहीं बता रहे हैं, मॉक नहीं दे रहे. So understand this, giving mock is very important, so as to you it is better to sweat in practice than to bleed in war, says a Chinese proverb. And this is a reality. It has been for all exams, entrance examination, also includes CLAT, common law admission test, and other law entrance examination. You must try to solve the sample papers as many times as you can. ठीक है, सैंपल सेट जो आए हैं उन्हें भी सॉल्व करने की कोशिश करिए. टुडे क्लैट कंसोर्शियम रिलीज द सैंपल सेट ऑन बेंचेस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, एंड बट इससे रिलेटेड के लिए, बेंचेस से रिलेटेड के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सर कैसे होगा. ही सेड टू मी कि सर ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है. Therefore, what I say, you need to practice, you need to go through. These sample papers are giving you that opportunity to look into the mindset of the question makers, the consortium which will set your paper. So you need to re-revise these things, get into the habit of revisiting important topics, and then again devote 3 to 4 hours per day. This is more than enough. 3 से 4 घंटे आप दीजिए systematically, और एक मॉक जरूर दीजिए. एक हफ्ते में एक मॉक देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये क्लैट में बोल रहा हूँ. सेम गोज विद AILET एंड अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन. आप उसका भी दीजिए, आप उसके लिए भी तैयारी करिए. अगेन 3 आवर्स. सो दिन में आपको 6 घंटे की प्रिपरेशन करनी है, विच इज ओके, विच इज लाइक फाइन विद एवरी वन ऑफ अस. ठीक है, बिकॉज इस समय लॉकडाउन भी चल रहा है एंड टाइम ही टाइम है. ठीक. सो दैट इज वन थिंग. एंड ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड this is very, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि
हम सब मोटिवेटेड रहें इन द सेंस कि ये नहीं होना चाहिए कि पेपर इतना डिले, मतलब बाद में होगा तो बाद में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। हम जितनी जितनी बार चीजों को पढ़ते हैं उतनी बार और बेटर हम लोग उसको कर सकते हैं, मतलब और ज्यादा हमें अच्छे से याद होगा। मान लीजिए कोई राइट टू प्रिवेसी पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते इतने 3 टॉपिक 4 कवर हो गए तो थोड़ा सा और आगे चला गया, केएस पुट्टास्वामी का थोड़ा सा समरी पढ़ लिया उसने, उससे पहले की चीजें पढ़ ली। सो गेनिंग नॉलेज इज इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो रिमेम्बरिंग कि हाँ, हम लोग कुछ पॉइंटर्स वाले नोट्स भी बनाते रहे जिससे अपन को पता हो कि हाँ ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। दिस विल हेल्प अस इन अ लॉन्गर रन, दिस विल हेल्प अस इन अ लॉन्गर रन, ये इंपॉर्टेंट है। एंड बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दें। और इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। व्हेन आई से क्लैट कंसोर्शियम, आपको मेरी बात से समझ में ही आ गया ही होगा जब मैंने बोला कि ये एक ऐसा पेपर है जिसके लिए क्रैश कोर्स होता है। सो Even I find very surprising because we're talking to so many speakers every day on this subject, and they have beautiful strategies, and they have really, I mean, they're not saying panic, but they're just saying that it's not easy, and let's make it easy by not feeling very anxious about it. so simple strategy ये है कि that ये this is quite personal and I'm not making it, this is my personal comment. I always said to people, there's only one seat which you are going for, and you must be confident about that. You must be confident about your preparation. This is important. Secondly, what happens is practice will help you out, solving more mocks will help you out. And again, आजकल इतने सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं ऑनलाइन में, सो यू नीड टू फिगर इट आउट व्हाट यू आर फॉलोइंग. Like I actually in this being in this industry follow a lot of them, and I actually after watching a 30-minute video I learned nothing. It's all about gyan, which is not even helping me out. It's like stay motivated, stay safe, stay ये वो दुनियादारी, ठीक है. That is of how important are legal maxims, ठीक है. So we got a very fine question right now. How important are legal maxims? So they are important, बच्चा. The reason being that कि जो legal passages हैं, पहली बात ये उसमें बीच में कहीं ना कहीं लिखा होगा, ठीक है, तो उसमें उस पर अपन को हेल्प करेगा. दूसरी चीज, हम लोग बाकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं, सिम्बाइसिस का दे रहे हैं, लैट दे ही रहे हैं, एआईलेट दे ही रहे हैं, इसमें लीगल मैक्सिम पूछे ही जाते हैं. लैट में तो बड़े इजीली, ठीक है. तो दीज लीगल मैक्सिम्स आर इंपॉर्टेंट. सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन सेड, वो मैंने आपको बोला कि लीगल मैक्सिम मिलेंगे भी कहां से. आप गूगल कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम एक सेट मिल जाएगा, ठीक है, वहां से अपन पढ़ सकते हैं इसे, ठीक है. और ऐसा भी कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा ही हो गए हैं, मतलब जहां पे भी आपको लिस्ट लगे कि 50 के ऊपर वाली लिस्ट है, छोड़ दीजिएगा, ठीक है. इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जिसने लिस्ट बनाई उसको भी नहीं पता है कि इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, तब उसने इतने ज्यादा डाल दिए, ठीक है. इट्स ऑल अबाउट मेकिंग द प्रिपरेशन इजी देन मेकिंग इट डिफिकल्ट. रही बात मैथ्स की, सो मैथ्स में जो क्लैट कंसोर्शियम ने बच्चे बोला है, वो ये बोला है कि बेसिकली जो उसको पूछेगा वो हम लोग से पूछेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक्स, जो सैंपल सेट में भी मुझे देखने को मिल रहे हैं. ऑल्दो मैं तुम्हें सीरियसली बताऊं, जब मैंने पेपर दिया था 2013 में, मैंने मैथ्स के सेक्शन को अटेम्प्ट नहीं किया. So I am the least authority to comment on maths wala portion, ठीक है. But again, because I am interacting with kids and sitting down, I used to sit down with them. Yeah, but at that time you were appearing, but as a faculty, what would you advise your students is, I think, what Samrit wants to know. Yeah. So I will just say कि देखो, ये जो मैथ्स है या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है बच्चा, ये सारे इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कॉमन है. तो इसमें अपन को आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं है कि अपन लोग कहाँ से पढ़ेंगे. अब मैं अगर प्रिपरेशन कर रहा था, मैं सिर्फ अपने एंड से बता रहा हूँ, तो मैं यूट्यूब में जाता, सबसे पहली चीज मैं यही करता, और मैं फिर सर्च करता कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक मैं सीरीज देखता या किसी का देखता. अपन जब वीडियो के पहले 10-15 मिनट में होते तो हम ये समझ जाते हैं कि इस मेंटोर से हमें ये बात समझ में आएगी या नहीं, ठीक है. सो ऐसे किसी भी टॉपिक को, ये क्योंकि ये टॉपिक आता रहता है, एमबीए में भी आता रहता है, अदर इंट्रेंस एग्जामिनेशन, एसएससी, बैंकिंग, हर जगह आता रहता है. तो अपन इनमें से किसी की भी सीरीज जो यूट्यूब का वीडियो सीरीज है उसे फॉलो कर सकते हैं एंड निकाल सकते हैं. इन द ईयर 2013 व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, ऑल्दो आई डिड नॉट अटेम्प्ट मैथ्स, बट देयर वाज दिस पर्टिकुलर पर्सन, रवि हांडा. So I followed his videos. And I actually liked how he was teaching these concept of maths. He is not to blame that I did not attempt that. But again, if his videos are available on YouTube, his name is Ravi Handa, and very wonderful videos they used to be of mathematics.
and I believe he also makes videos on data interpretation. And if not, then I will try to search it again and then contact him to make those videos. So that would be my way of preparing quantitative aptitude ACA maths. Any other question anybody has? There are a few things that somebody wanted to know if you want to answer, although this is just for CLAT preparation and that too also on legal aptitude. So, however, somebody wants to related to the business. So related to the business and the laws, I believe the perfect platform to learn that is LawSeco. The perfect platform for that is if you can read blogs on iPleaders. I'm not an authority on those things, but I actually, when I was talking to certain of the faculties who teach in national law universities and other private law colleges in India, they were praising the way these videos figure it out, how to enter into the corporate field, how to draft a contract, how to go about. I actually liked one of the video of Mr. Abhyuday Agarwal. I was watching it 2 days back. That showed a reality on how these things work out. Then how to go about. You can read an article which Ramanuj Mukherjee wrote on. I hope that blog is still available. How he came about and got into this angle of from starting from being into the National Law University, then being a corporate lawyer, and then finally running a few successful enterprises. So I would not really like to comment. I don't want to be somebody who is not an authority on something and wants to comment. Yeah, so it will be best to stick to the topic. I think it will be great if any more insights you have with regards to legal aptitude and anything that you feel will be helpful for the people preparing would be nice. Okay. So what at this juncture I can tell, I have already told you some important topics. What I can tell you is another set of important topics. So that will help out the kids in figuring out कि हाँ ये topic important because मुझे लग रहा है. I want to say it in this very disclaimer that these topics I identify as important. ठीक है. Citizenship Amendment Act. Then there is something related to, I have already told you about triple talaq. I have already told you about surrogacy related to women issue. Then there's something called this current issue of Vizag gas leak case. This is very, very important because this is where you figure it out. The important topics, the NGT, National Green Tribunal का नाम आ जाता है जब आप इसे पढ़ते हैं. फिर आप स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है. फिर होल लेट ऑफ आर्टिकल्स टेलिंग कि किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का नहीं होगा, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का होगा. अच्छा, जिन लोगों को पता नहीं है ये होता क्या है, ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर आते हैं. ठीक है. और लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज द जजमेंट लॉ. ठीक है. सो आप इससे रिलेटेड एक दो टॉपिक्स पढ़ लोगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मतलब क्या रहा है. आई बिलीव कि अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, आपने टॉपिक ऑलरेडी पढ़े होंगे न्यूज़पेपर में. Vizag gas leak case. So this is important, which I consider it important because इसमें strict liability और absolute liability ये concept आ जाते हैं. Then there's reservation promotion was an important topic. Then with respect to the RTI Act, CGI was under the scrutiny. ठीक है. Sunlight is the best disinfectant. ये वाला पैसेज इतने मॉक्स में आया है कंट्री में. आई डोंट बिलीव कि अगर किसी ने भी किसी भी लॉ कोचिंग में कोई मॉक बनाया है उसे ये पैसेज ना हो. Sunlight is the best disinfectant. ये सबने अपने मॉक में डाला है. आई वुड नॉट नेम दी सेंटर्स बट सबने डाला है. ठीक है. सो सबने बिलीव किया कि भाई आरटीआई इंपॉर्टेंट है. मुझे भी लगा कि ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा सेडिशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डेफेमेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. Then there's this aspect of fake news which is going on these days. This can be important. With respect to crime and politics, I have already told you. Right to privacy, I have told you. Rohingya crisis, I have already told you. Women issues, already I have cleared it out to you. Sorry, NSA, National Security Act. This was in news. This was widely in news during the time of January, February. So this becomes important.
These days, when it is a lockdown, everybody is discussing about the importance of preamble to the Constitution of India. Constitution is the topic everybody wants to talk about. ठीक है? So preamble, क्योंकि इसमें सारा चीज set out हो जाता है, पूरा structure. तो preamble important हो जाता है. अपन को preamble तो पता ही होना चाहिए. बाकी law entrance examination के लिए भी पता होना चाहिए कि ये important topic है. ठीक है? So these topics being said, ठीक है, domestic violence भी एक topic रहेगा. ठीक है? And Motor Vehicles Act. How can I leave that? Motor Vehicles Act, जो उसमें changes आए. That is another important topic. These are the topics which I believe are important. There are other topics also. We will gradually take them. Yes, sure. Yeah. So I think these are the questions I had. I'm at YouTube now. If somebody's asked questions there, because that is also be streaming on YouTube as well. That should be, that's why you couldn't see my. That should be all from all the questions from Misa. If there's anything else, otherwise we could wrap this up. Yeah, surely. I would just like to say, I've already said, just be confident about your preparation. Have a strategy. Go with that particular strategy. And the last line probably from me is this only: revise sample papers and the sample set of questions which is released by CLAT Consortium. These are going to be very, very important. That is all, Shweta, from my end. Great. Thank you so much for joining. For any other topics we could think about, because it's, we are in a way assisting people in their CLAT preparation. That's our mission of Mission Matrix. So we'll come back to you for more topics in future then. Thank you everyone for joining us. In case you have any feedback and anything you would like as an audience to, that you would like to know more about, please feel free to chat, put it in the chat and we could take a note of that. Thank you very much. Yeah. Thank you, Harsh. Thank you, Shweta.